महाराष्ट्र के बाद अब गुजरात में भी कोरोना स्थिति का संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार ने बोर्ड की परीक्षाओं को फिलहाल टाल दिया है और बाकी कक्षाओं के बच्चों को मास प्रमोशन दे दिया है। गुजरात सरकार ने प्रदेश में कोरोना की स्थिति को देखते हुए 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा 15 मई तक स्थगित कर दी है। साथ ही कक्षा 1 से 9, कक्षा 11 के बच्चों को मास प्रमोशन का भी निर्णय लिया गया है। गुजरात में बेकाबू हो रहे कोरोना संक्रमण पर हाईकोर्ट ने फिर एक बार सरकार पर कई तरह के सवाल दागे हैं, जिसमें आरटी-पीसीआर टेस्ट बढ़ाने, ऑक्सीजन, रेमडेसिविर की मात्रा उपलब्ध कराने, 108 एम्बुलेंस और अस्पतालों में बेड मुहैया कराने जैसे कई मुद्दों पर सवाल पूछे गए। गुजरात में बुधवार को कोरोना वायरस संक्रमण के ऑल टाइम हाई 7,410 नए मामले सामने आए। 2,662 लोग डिस्चार्ज हुए और 73 लोगों ने अपनी जान गंवाई। वहीं भारत में रोजाना दर्ज होने वाले कोरोना केस का आंकड़ा 2 लाख के करीब पहुंच गया है। महाराष्ट्र में पहले ही कोरोना कर्फ्यू लगा दिया गया है और दिल्ली में भी केजरीवाल सरकार ने आज वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान कर दिया। ऐसे में गुजरात की जनता भी कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए लॉकडाउन के इंतजार में है। एक और कोरोना महामारी से लोग इतने डर रहे हैं कि खुद के परिजन का शव या अस्थियों को वो हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं है। वहीं दूसरी ओर कोरोना मृतकों की अस्थियों में से सोने चांदी की वस्तुएं ढूंढने के लिए विश्वामित्री नदी के घाट पर श्रमजीवियों ने मशक्कत शुरू कर दी है। वडोदरा में बेकाबू बने कोरोना संक्रमण से हजारों लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। कोरोना मृतकों का अंतिम संस्कार उनके शरीर पर पहने हुए गहनों के साथ ही किया जा रहा है। ऊपर से उनकी अस्थियां लेने भी परिवार नहीं पहुंच रहे हैं। खासवाड़ी स्मशान गृह में अस्थियों का ढेर लग गया है और इन अस्थियों को विश्वामित्री नदी में बहाया जा रहा है। लेकिन अस्थियों को बहाने से पहले राख को छानकर सोने चांदी के जेवर ढूंढने की कोशिश कुछ गरीब वर्ग के लोग कर रहे हैं, जो महामारी के बीच भी विवशता की गवाही देते हैं। આપણા હિન્દુ સંસ્કારો મુજબ અગ્નિદાહ આપતા પહેલાં દરેકના મોંમાં સોનું, રૂપું કે ચાંદી જેવી જેની કેપેસિટી એ મુજબ મૂકતા હોઈએ છે। હાલમાં પરિસ્થિતિ એવી છે કે કોરોનામાં જે રીતે બોડી જાય છે તો ઘરેથી જાય છે ત્યારે કદાચ વીંટી પહેરેલી હોય કે બંગડી પહેરેલી હોય, પણ ત્યાંથી જ્યારે બોડી મરી જાય અને તરત સીધી બોડી પેક કરીને જાય છે તે વખતે હાથમાંથી વીંટી કે બંગડી કાઢી છે ખબર નથી, તો એ સંજોગોની અંદર મૃતદેહની સાથે જ એ સળગાવી દેવામાં આવે છે। તો એ વખતે પછી જે કંઈ સોનું ચાંદી જે કંઈ હશે ગઠ્ઠો થઈ જાય, આ ગઠ્ઠો થઈ જાય છે અને અગ્નિદાહ બાદ આ બધું જ્યારે વિસર્જિત કરવાનું છે તો હવે સ્થિતિ એવી થઈ છે કે પરિવારના લોકો પણ હાડકાં લેવા જતા, અસ્થિ લેવા જતા નથી કે ચાણોદ પધરાવવા માટે લઈ જતા નથી, પરંતુ ત્યાં ને ત્યાં રહેવા દે છે કોરોનાના ડરથી। હું જાતે જગ્યાએ ગયો તો જોયું તો ધ્યાનમાં આવે છે કે આ જે કંઈ અસ્થિઓના ઢગલા અને ખરાખના ઢગલા છે એ પાછળ ખાસવાડી સ્મશાનની પાછળ ઘાટ આવેલો છે વિશ્વામિત્રીનો। એ ઘાટની ઉપર થપ્પા ને થપ્પા આવા અગ્નિદાહ થયેલી શરીર જે પંચમહાભૂતમાં વિલીન થઈ ગયું છે એની રાખ અને અસ્થિ પોટલામાં બાંધીને મૂકેલા હોય છે અને કેટલાક લોકો આવી એ પોટલાઓ ખોલે છે, ચારણીથી ચાળે છે, એમાં કંઈ સોનું નથી, ચાંદી નથી ને રૂપું નથી ને આ બધું હોધેતા હોય છે। પણ મારું એવું કહેવું છે, હું આને બે રીતે જોઈ રહ્યો છું। એક એવું જોઈ રહ્યો છું કે આપણા લોકો અસ્થિ લેવા ના જાય પોતાના પરિવારના પ્રિયજનની, તો આનાથી વધારે ખરાબ શું હોઈ શકે। અગ્નિદાહ થઈ ગયા પછી કોઈ કોરોના થતો નથી, એટલે આ ડર કાઢી નાખવો છે પહેલી વાત। અને બીજી વાત એવી છે કે જે અસ્થિઓ આપણે નથી કરતા તે વિશ્વામિત્રીમાં અસ્થિ પધરાવવાથી ફાયદો શું? વિશ્વામિત્રી અથવા તો એનીમાં રાખોડી અને અસ્થિ નાખી દેવામાં આવે તો કોઈ વિશ્વામિત્રી આજની સ્થિતિ એવી છે કે વડોદરામાં આપણે ગંદી કરી છે। વડોદરાની બહારની વિશ્વામિત્રી છે, વડોદરામાં આવતા પહેલાંની પ્રવેશતા પહેલાંની સ્વચ્છ વિશ્વામિત્રી છે, પવિત્ર છે, પરંતુ વડોદરામાં જે ગંદી છે એમાં જ ગંદકીમાં આ નાખવું તો વધારે ગંદકી કરવી। કેમિકલવાળું પાણી છે, ગટરવાળું પાણી છે, મળમૂત્રવાળું પાણી છે, એમાં અસ્થિને રાખ નહીં પધરાવી જોઈએ। કોર્પોરેશનને પણ હું વિનંતી કરું છું અને સ્વયંસેવી સંસ્થાઓને પણ એવું કહું છું કે આવી જે કંઈ રાખ અને અસ્થિઓ છે તમે ભેગી કરી રાખો। જો તમારાથી ના થાય, અમે લોકો તમામે તમામ આ રાખ અને અસ્થિઓ ને આજે નહીં થોડો સમય ગયા પછી
હિન્દુ શાસ્ત્રોક્ત વિધિથી આને ચાણોદમાં પધરાવવાની બધી વ્યવસ્થા કરીશું। वडोदरा में कोरोना की स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। हालात ऐसे हैं कि मरीजों को अस्पताल में ना तो बेड मिल रहे हैं और ना ही स्मशान में चिताएं। जिंदगी से लेकर बीमारी और बीमारी के बाद मौत, सब कुछ कतार में है। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये एसएसजी अस्पताल का कोविड विभाग में जो कोरोना के टेस्ट के लिए जो लोग आते हैं ये कतार है। और अब जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वो ज़िंदगी और मौत के बीच लड़ाई जारी है, उसकी कतार है। ये कोरोना पॉजिटिव मरीज़ हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि उनको एसएसजी अस्पताल में बेड मिले और उनको भर्ती किया जाए। हालात ये हैं, ये जो मरीज़ हैं उनको ज़रूरत है वेंटिलेटर की, मगर नॉर्मल ऑक्सीजन देकर उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। पिछले 7 दिनों से एसएसजी अस्पताल में जो मरीज़ आते हैं उनको भर्ती करने के लिए जगह कम पड़ रही है। उसी के सामने वडोदरा का हेल्थ विभाग जो है, स्वास्थ्य विभाग जो है, वो वडोदरा शहर के अलग अलग जगह पर बेड बढ़ाए गए हैं उसकी बातें कर रहा है। हाँ, बिल्कुल बेड बढ़ाए गए हैं, उसमें गलत भी कुछ भी नहीं है। वो बेड किसके लिए काम आएंगे वो सबसे बड़ा सवाल है। कैसे पेशेंट को वहाँ भर्ती किया जा सकता है वो सवाल है। जो क्रिटिकल कंडीशन में पेशेंट यहाँ आते हैं एसएसजी अस्पताल में कोविड विभाग में, उनको वहाँ भर्ती नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनकी कंडीशन नहीं है ऐसी कि वहाँ उनको भर्ती किया जाए। इंतज़ार में लोग यहाँ बैठे हैं कि कब हमें बेड मिलेगा, जगह मिलेगी और हमें यहाँ एडमिट किया जाएगा। मैं कई देर से देख रही हूँ, काफ़ी जद्दोजहद कर रहे हैं। क्या हालात क्या है? जिस तरह यहाँ पेशेंट आ रहे हैं उनको यहीं पे ऑक्सीजन दिया जा रहा है, किस तरह के हालात है? कंटिन्यू पेशेंट सुबह से चालू हुई है, पूरे दिन चालू रहते हैं। एम्बुलेंस एक के बाद एक आती ही रहती है और मतलब पूरे हॉस्पिटल में अभी बेड की बहुत ही कमी है, इसलिए सब पेशेंट आते और यहाँ हम प्राइमरी ट्रीटमेंट देते और जहाँ जब भी बेड ऊपर खाली होता है फिर ऊपर हम एडमिट कर देते हैं। प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पर रखते हैं 15-20 मिनट 20 मिनट। प्राइमरी ट्रीटमेंट तो बहुत लंबी चल रही है, मैं कब से यहाँ हूँ, प्राइमरी ट्रीटमेंट ही चल रही है। जैसे ओएसडी डॉक्टर विनोद राव ने बताया है कि यहाँ 800 बेड का ये कोविड हॉस्पिटल बनाया है एसएसजी को, पूरे हर फ्लोर पे बेड बनाए हैं। 800 के 800 यहाँ भर्ती है मरीज़। तो अब क्या होगा, क्योंकि इनके लिए जगह है? अभी जब भी ऊपर से जगह खाली होती है, कोई पेशेंट डिस्चार्ज होता है या तो दूसरी हॉस्पिटल जैसे BAPS समरस हॉस्पिटल जहाँ पर स्टेबल पेशेंट को हम ट्रांसफ़र करते हैं, उसकी जगह खाली होती है, फिर हम यहाँ से ऊपर शिफ्ट कर देते हैं पेशेंट को। 15-20 मिनट जितना टाइम लगता है तब तक हम यहाँ नीचे ऑक्सीजन देते हैं और जब हमें इन्फॉर्म होता है कि ऊपर जगह खाली होती है तब हम शिफ्ट कर देते हैं ऊपर। मगर यहाँ जो पेशेंट अभी देख रही हूँ मैं, उसमें क्रिटिकल ज़्यादा है और दूसरे पेशेंट कम है जहाँ जिनको समरस में या फिर BAPS में शिफ्ट किया जाए। तो क्रिटिकल पेशेंट को कितनी देर तक, क्योंकि उनको नॉर्मल ऑक्सीजन से शायद वो सर्वाइव नहीं कर पाए, उनको तो वेंटिलेटर की ज़रूरत है। तो ऐसे हालात में क्या करते हैं, किस तरह ट्रीट करते हैं पेशेंट? समरस हॉस्टल और BAPS में हम स्टेबल पेशेंट को ही भेजते हैं। हाँ, मगर इनके क्रिटिकल मरीज़ का क्या? क्रिटिकल पेशेंट जो आते हैं उनको हम वेंटिलेटर के लिए ऊपर ICU है, यहाँ गोत्री या तो फिर SSG में एडमिट होते हैं जो क्रिटिकल पेशेंट होते हैं। और जो पेशेंट ऊपर से अच्छे ICU में अच्छे होके वार्ड में ट्रांसफ़र होते हैं, उनकी जगह पर हम उनको वेंटिलेटर के लिए ऊपर वार्ड में भेजते हैं। इंतज़ार, इंतज़ार और इंतज़ार और कतार, कतार और कतार। मैंने जैसे शुरू में कहा, ज़िंदगी से लेकर मौत तक सब कुछ अभी कतार में है और ये कतार कब ख़त्म होगी, ये इंतज़ार कब ख़त्म होगा, इसका अंदाज़ा कोई नहीं लगा पा रहा है। और जिस तरह
एसएसजी अस्पताल के कोविड हॉस्पिटल में हम आते हैं, बाहर से लेकर अंदर तक सिर्फ कतार ही कतार नज़र आती है। भरत भाई, यहाँ आप दिखाइए, यहाँ भी ये टेस्टिंग के लिए कतार है। पहले टेस्टिंग के रजिस्ट्रेशन के लिए कतार थी और अब यहाँ पर कतार है टेस्टिंग के लिए। अस्पताल वडोदरा शहर में निजी भी बहुत सारी हैं, प्रशासन की ओर से भी बहुत सारी ऐसी सुविधा मुहैया करवाई जा रही हैं। उसके बावजूद ये हालात हैं, तो इस हालात से निपटने के लिए हर कोशिश नाकाम और नाकाफ़ी साबित हो रही है। ना ज़िंदगी को सुकून है और ना ही मौत को आराम। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, कई सारी गाड़ियों की कतार है। यहाँ कतार में खड़े हैं अंतिम संस्कार के लिए, और ये अंतिम संस्कार करने के लिए यहाँ कोई प्रकार की भीड़ नहीं लगती है और ना ही कोई साथ में आ सकता है। 2 लोग हैं, वो भी पीपीई किट के साथ। हर जगह कतार है। और एक बात और, हम अक्सर कहते हैं कि क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाएंगे, और आज ये हालात हैं कि हमारे साथ कोई हमें आखिरी धाम तक छोड़ने आने के लिए भी हमारे साथ कोई नहीं है। इस कदर कुदरत ने हम पर कहर बरपा है। यहाँ अंतिम क्रिया हो रही है और उनके साथ सिर्फ एक व्यक्ति, जब हम यहाँ आए तो सिर्फ एक व्यक्ति यहाँ पर थे, और वो भी वीडियो कॉलिंग के ज़रिए विदेश में बैठे परिजनों को उनका अंतिम संस्कार दिखाया जा रहा है। मानव जीवन खतरे में है, उसी तरह हमारा पर्यावरण भी खतरे में है। हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं कि कितने जंगल कट रहे हैं और उस जंगल के सामने ये मनुष्य किस हालात से गुज़र रहा है। हर परिस्थिति बयां करती है कि हम अपने आप को कैसे संभालें। वडोदरा शहर का खासवाड़ी स्मशान का ये दृश्य, ये भयावह तस्वीरें बयां करती है वडोदरा शहर की कोरोना और कोरोना में गंभीर स्थिति से गुज़र रहे हैं लोग। हर तरफ चिताएं जल रही हैं और हर तरफ सिर्फ मायूसी ही मायूसी है। इस मायूसी के साथ हर शख्स एक ही बात सोचता है कि कुदरत क्या कर रही है हमारे साथ। अंतिम विदाई की ये तस्वीरें आपका दिल दहला देगी, मगर ये तस्वीरें इसीलिए भी हम दिखा रहे हैं कि इसकी गंभीरता लोग समझ सकें। शहर में कोरोना को लेकर स्थिति बिगड़ती जा रही है और इसी बीच जनसेवा केंद्र बंद होने से नागरिकों को समस्याएं हो रही हैं। शहर में कोरोना संक्रमण में जबरदस्त उछाल देखा जा रहा है। बढ़ रहे कोरोना केस के बीच नर्मदा भवन में कार्यरत जन सेवा केंद्र कोरोना संक्रमण के चलते 21 अप्रैल तक बंद कर दिया गया है। ऐसे में विभिन्न डॉक्यूमेंट्स के लिए आने वाले लोगों के पैसे और समय दोनों का व्यय हो रहा है, जिस पर ठोस कार्यवाही की आवश्यकता है। जनसेवा केंद्र आजेथी करी अने
21 તારીખ સુધી બંધ રહેશે. એનું કારણ એ કે કોરોના સંક્રમણ અતિશય વધતું જાય છે. એને કારણે આપણે સાવચેતીના ભાગરૂપે વધારે કોરોના સંક્રમિત ન થાય એના માટે નાયબ કલેક્ટરની સૂચનાથી હાલ 21 તારીખ સુધી જનસેવા કેન્દ્રની કામગીરી બંધ કરવામાં આવેલ છે. પણ કોઈને ઇમરજન્સી મેડિકલ સર્વિસની જરૂર હોય અથવા તો એને કોઈ પણ બીજી જરૂરિયાત હોય કે જે ઇમરજન્સીમાં આવતી હોય તો એમને આ સેવા અમે પૂરી પાડીએ જ છીએ. અને કોઈ પણ ઓનલાઈન એપ્લિકેશન ઘરે બેઠા પણ કરી શકે છે. એને અહીં આવવાની પણ જરૂર નથી. આવકનો દાખલો, જાતિનો દાખલો જે પણ મેળવવું હોય ઘરે બેઠા પણ એ મેળવી શકે છે. હાલ તો હમણાં સુધીમાં લગભગ 15 દિવસ પહેલાં 3-4 કર્મચારીઓ સંક્રમિત થયેલા હતા અને હોમ આઇસોલેટ કરતા અને અમે એ સ્વસ્થ છે હાલ. विश्वामित्री घाट की सफाई में इन दिनों यवतेश्वर घाट की सफाई जारी है, जहां ऐतिहासिक शिल्पकारी भी पाई जा रही है। विश्वामित्री नदी के किनारे यवतेश्वर घाट की सफाई में सुंदर स्कल्पचर मिले हैं। नवनाथ महादेव कावड़ यात्रा कमेटी द्वारा पिछले सप्ताह से यवतेश्वर घाट की सफाई जारी है, जिसकी सफाई के दौरान मछली, हाथी, कछुए जैसे कई स्कल्पचर देखने मिले हैं। इनके अलावा घाट निकट महादेव जी का एक मंदिर भी मिला है, जहां पीपल के पेड़ों ने अपना जमघट जमाया हुआ है। नवनाथ महादेव कावड़ यात्रा समिति द्वारा छेल्ला 96 દિવસથી કામનાથ મહાદેવ મંદિર ઘાટની સફાઈ અને જીર્ણોદ્ધારનું કામ ચાલી રહ્યું છે. સાથે સાથે છેલ્લા 10 દિવસથી યવતેશ્વર મહાદેવ મંદિર એની પાસે આવેલો કાલાઘોડા કમાટી બાગવાળો ઘાટ એની પણ સફાઈનું કામ કરી રહ્યા છે. આ જે સફાઈનું કામ કરતાં કરતાં આપણી કમનસીબી એવી છે કે આપણા વડોદરાના લોકોની કે આપણે આપણા પુરાતન સંસ્કૃતિ, પુરાતન વારસા પ્રત્યે આપણે સજાગ નહીં હોવાના કારણે બહારના અંદર યવતેશ્વર તરફ ઘૂસતામાં જ કાલાઘોડા બ્રિજથી નીચે ઉતરતામાં જ અંદરના ભાગમાં ઐરાવત મંદિર જે છે એ મંદિર એને 3 બાજુ ઐરાવત અને મહાદેવને જે પાણી ચડે છે એ પાણીને બહાર નીકળવા માટેની એક ગૌમુખી એ મળી આવી છે, માટીમાં દબાઈ ગઈ હતી. આ 3 ઐરાવતો દબાયેલા હતા. એવી રીતના કામનાથ યવતેશ્વર પર પગથિયા ઉતરીએ પહેલા જ ઘાટ પર વડોદરા શહેરમાં નાથ સંપ્રદાયનું જે કામ હતું અને એની અસર હતી, એના કારણે ગુરુ મચ્છેન્દ્રનાથની યાદમાં કાચબો અને એની આજુબાજુ 3 માછલીઓ આનું એક પ્રતીક છે, સ્કલ્પચર છે. એનાથી નીચે જઈએ એક નાનકડો કાચબો એ પણ ત્યાં છે. અને બાકી જોવા જઈએ તો ત્યાં પીપળો જાણે એક મહાદેવના મંદિરને પીપળો એવો વીંટળાયો છે, પીપળાને પણ એવું થયું કે હું આ વડોદરા શહેરમાં નવનાથ છે તો મહાદેવને તોરણ બાંધવાનું કેમ અટકાવી દઉં. એટલે પીપળાએ પોતાના મૂળિયાને આખા તોરણ સ્વરૂપે મંદિરના દરવાજાને આખા લઈ લીધા છે અને એના મૂળિયા આખા 2 બાજુ છે. આ એકદમ અદ્ભુત જગ્યા છે. लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए VNM न्यूज़ और हाँ, VNM टीवी की YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसे प्रेस करते ही आपको मिलेगी VNM टीवी YouTube चैनल की सारी नोटिफिकेशंस और आप रहेंगे खबरों से अपडेटेड।